Hello, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is December 1, 2021, Wednesday. Inspiration is the sum of small efforts repeated day in and day out. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. GDP grows 8.4% in quarter 2. So the economy grew 8.4% during the second quarter of financial year 22 as the pace of vaccination has increased and COVID induced restrictions were eased. So finally, data on GDP has released, and as per that data, quarter 2 of financial year 22 has seen growth rate of 8.4%. Although there is an impact of low base effect of 7.4% contraction during the corresponding period of the very previous year. And if we compare this data with pre-pandemic time or with pre-pandemic year, so in that case, GDP remained almost flat, managing only to expand 0.3%. So it means in comparison to the pre-pandemic year, there is only increase of 0.3%, or we can say there's only the expansion of 0.3% in comparison to the quarter 2 of financial year 20, and that was the pre-pandemic year. And this data and this comparison of data simply indicates that economy is in recovery mode, but yes, the pace is yet to be accelerated. It has not achieved its full-fledged acceleration. So yes, economy has started recovering, but yes, not with its full its pace. The economy, while growing 0.1% year on year in quarter 1, had contracted to 9.2% against the corresponding pre-COVID period of financial year 20, and that all because of the COVID related restriction, COVID related lockdown, and uncertainty with the economy. And with this, economy expanded 30.7% during the first half of this fiscal year. And if we talk about the contraction, तो सर्विस सेक्टर जो है जो 57% शेयर कॉन्स्टिट्यूट करता है इंडियन इकोनॉमी का, विच कॉन्स्टिट्यूट 57%. आप कई बार मैंने बताया कि सर्विस सेक्टर, जिसको टर्शरी सेक्टर भी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूट अप्रॉक्सीमेटली 60% टू द इंडियन इकोनॉमी. इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एंड देन प्राइमरी सेक्टर, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर. तो 57% जो सर्विस सेक्टर कॉन्स्टिट्यूट करता है, उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है इंडियन इकोनॉमी में, क्योंकि वो सेक्टर सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, चाहे वो टूरिज़्म हो, एविएशन हो, हॉस्पिटैलिटी हो, या कोई भी अदर सर्विसेज हो. हालांकि एक्सपर्ट्स का एक कहना है, अगर हम बात करें जो इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है मिस्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, उनका एक कहना है कि इस साल फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, फॉर दिस फिजिकल ईयर, इंडिया इज likely to see the double digit growth. After studying this data, our chief economic advisor is saying that it is highly possible that India is going to attain that double digit growth rate for this financial year. And this is the state of economy as per the National Statistical Organization. So percentage change over quarter 2 of financial year 20 is approximately 0.3% in GDP and 0.5% in GVA. That is simply in comparison to the pre-pandemic time. And if we talk about the growth in all 4 quarters of last 3 years, so this is the financial year 20, that is pre-pandemic, financial year 21 pandemic time, and this is also financial year 22 pandemic time, or we can say post pandemic time अगर थर्ड वेव नहीं आती है तो, और रिकवरी टाइम. तो अभी तो इसके क्वार्टर 2 ही क्वार्टर्स हुए हैं, तो इनका कंपैरिजन है क्वार्टर वाइज कितना कितना ग्रोथ हुई. दिस रेड बार इंडिकेट्स द जीडीपी नंबर एंड दिस ब्लू बार इंडिकेट्स द जीवीए नंबर.
और जैसा कि हम क्लियरली देख सकते हैं, अगर आप इस पूरे ग्राफ को देखें तो क्लियरली विजिबल है कि इस ड्यूरेशन में Q1 और Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21, जबकि इंडिया वाज हैविंग द फुल फ्लेज रिस्ट्रिक्शन रिलेटेड टू कोविड-19 और नेशन वाइज लॉकडाउन था, तो चाहे वो जीडीपी हो चाहे वो जीवीओ हो, दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट किए थे सिग्निफिकेंटली। 24.4% का कॉन्ट्रैक्शन जीडीपी में देखने को मिला था, -22.4% का कॉन्ट्रैक्शन जीवीए में देखने को मिला था। और ये कॉन्ट्रैक्शन Q2 आते आते थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था, थोड़ा सा कम हुआ था। हालांकि Q2 में भी फाइनेंशियल ईयर 21 Q2 में भी जीवीए और जीडीपी दोनों में ही कॉन्ट्रैक्शन था। हालांकि Q3 के बाद से रिकवरी स्टार्ट हुई और वो रिकवरी थोड़ा सा Q1 में अपने पीक पर पहुंची। इसके बाद से इंडिया में फिर से सेकेंड वेव आ गई थी कोविड-19 की वजह से, जिसके बाद Q2 में फिर से थोड़ा सा स्लैश देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ जीडीपी एंड जीवीए। एंड दिस इज द सेक्टोरल परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंजेस ईयर ऑन ईयर बेसिस। This red line indicates the service sector, this gray line indicates the agriculture, that is primary sector, and this blue line indicates the industry or the manufacturing sector. ओवरऑल अगर हम देखें इन तीनों ही लाइन को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर रहा है वो एक स्टेबल सिचुएशन में रहा है थ्रू आउट पैंडमिक पीरियड। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, अगर इन दोनों रेड और ब्लू लाइन को देखें तो इनमें हाई फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। And if we talk about the other key indicator, final consumption expenditure rises to 8.6% of year on year basis but contracted 3.5% compared to the pre pandemic। तो बेसिकली इस बार का जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा दिया है दैट इज बीइंग कंपेयर्ड विद द प्री पैंडेमिक ईयर, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अब जो है वो रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है। इवन फर्स्ट और सेकेंड वेव के बाद जो इम्पैक्ट होना था वो हो चुका है। नाउ रिकवरी हैज़ बिन स्टार्टेड, सो इट इज़ मोर रियलिस्टिक दैट वी कंपेयर द डेटा विद द प्री पैंडेमिक कि हमने कितना खोया और कितना पाया इस पैंडेमिक की वजह से। तो फाइनल कंजप्शन जो है वो 8.6% बढ़ा तो है पिछले साल के कंपैरिजन में, यानी फाइनेंशियल ईयर 21 के कंपैरिजन में, लेकिन प्री पैंडेमिक के कंपैरिजन में, प्री पैंडेमिक ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 20 के कंपैरिजन में 3.5% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की तो 11% का इंक्रीज देखने को मिला है। कैपिटल फॉर्मेशन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब जो गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, प्राइवेट कंपनीज कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, उसकी बात मोटे मोटे शब्दों में उसी की बात हो रही है। तो उसमें 11% तक का इंक्रीज देखने को मिला है, बट ग्रोथ स्लाइड्स टू 1.5 कंपेयर टू द प्रीवियस प्री पैंडेमिक ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 20 के कंपैरिजन में 1.5% की ही ग्रोथ है। हालांकि एटलीस्ट ग्रोथ है, दैट इज बेटर कि हमने नाउ वी आर एट द स्टेज ऑफ प्री पैंडेमिक। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की बात करें तो 8.7% का इंक्रीज देखने को मिला है इनटू Q2 ऑफ दिस फिस्कल ईयर। बट यस, इन कंपैरिजन टू द प्री पैंडेमिक ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 20 के Q2 से अगर कंपेयर करें इस डेटा को तो उसके हिसाब से 16.7% का कॉन्ट्रैक्शन है। इसका मतलब पैंडेमिक टाइम से पहले यानी फाइनेंशियल ईयर 20 में गवर्नमेंट 16% ज़्यादा खर्च कर रही थी, जो कि 22 तक आते आते 16% तक कम हो गया है। सो दिस इज द मेजर इंडिकेटर और की इंडिकेटर्स दैट इंडिकेट्स द स्टेट ऑफ इकोनॉमी एज पर द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और जैसा कि हमने डिस्कस किया, एग्रीकल्चर एक स्टेबल ग्रोथ पैटर्न एग्रीकल्चर ने मेंटेन किया है और वही हमें Q2 में भी देखने को मिला है फॉर दिस फिस्कल ईयर। इस फिस्कल ईयर के Q2 जिसका डेटा हम स्टडी कर रहे हैं उसमें भी एग्रीकल्चर ने 4.5% का ग्रोथ रेट रजिस्टर किया है। और अगर हम ग्रोथ को देखें तो चाहे वो प्री पैंडेमिक टाइम हो चाहे वो पैंडेमिक टाइम हो, एग्रीकल्चर ने पूरे टाइम पीरियड तक एक स्टेबल ग्रोथ रजिस्टर करी है इररिस्पेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग कोविड-19 केसेस इन इंडिया। So gross value added in agriculture and allied activity clocked at a healthy growth rate of
5% at a constant price in second quarter of financial year. Even financial year 21 का अगर हम पूरा ग्रोथ चार्ट देखें तो उस ड्यूरेशन में भी हम ये देख सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर रहा है उसकी परफॉर्मेंस पॉजिटिव ही रही है। अप्रॉक्सीमेटली 4% का ग्रोथ रेट देखने को मिला है इनटू लास्ट ईयर ऑफ डेटा, क्योंकि प्री पैंडेमिक में तो सारे सेक्टर ही ग्रो कर रहे थे, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे वो टर्शरी हो। लेकिन पैंडेमिक आते आते सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत इम्पैक्ट हुआ था, लेकिन एग्रीकल्चर जो कि इंडिया में एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर है उसने एक स्टेबल ग्रोथ पैटर्न मेंटेन किया। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4। जीडीपी passes pre-COVID level but by a tad. So India's GDP has crept higher than it was before COVID-19 pandemic. तो जो डेटा रिलीज हुआ है एनएसओ का उसके अकॉर्डिंग ये पता चल रहा है कि इंडिया का जो जीडीपी है वो पिछले साल, या हम ये बोल सकते हैं क्लियर टर्म्स में, जो प्री पैंडेमिक टाइम था, प्री कोविड लेवल था, उससे ज़्यादा हो चुका है या अप्रॉक्सीमेटली उसके बराबर आ चुका है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ईयर्स या 2 साल खो दिए बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। सो September quarter GDP number shows India's real GDP at 35.7 trillion, and this is 8.4% higher than it was in September 2020, यानी प्री पैंडेमिक टाइम। तो प्री पैंडेमिक टाइम या प्री पैंडेमिक ईयर या प्री कोविड लेवल के कंपैरिजन में 8.4% हायर आई है इंडिया की टोटल जीडीपी। और इसके बाद यानी अगर 22 के बाद और 20 के बीच ये पीरियड की बात करें, जितना भी पीरियड रहा दैट वाज द पैंडेमिक पीरियड, तो अप्रॉक्सीमेटली ये पीरियड इंडिया ने खो दिया बिकॉज ऑफ पैंडेमिक सिचुएशन। हम ग्रो करना तो बहुत दूर की बात है, वी वर ऑन कॉन्ट्रैक्शन स्टेज। तो कितना हमें लॉस हुआ पैंडेमिक से या कोविड-19 से, वो अब टाइम आ चुका है कि इकोनॉमीज जो हैं वो कंपेयर करिए, कि मोस्ट ऑफ द जो इकोनॉमीज हैं वो अब रिकवर कर रही हैं पैंडेमिक से। तो इट इज़ नाउ अप टाइम टू कवर और टू कंपेयर द डेटा विद द pre-COVID level in order to understand the loss, exact loss that every economy has faced because of COVID-19 pandemic. हालांकि ये डेटा तो इंडिया का है कि इंडिया ने अपना प्री कोविड, या हम बोल सकते हैं प्री कोविड के बाद से अपना जो नंबर है वो उसका इंक्रीज होने लगा है 8.4, या प्री कोविड लेवल के अकॉर्डिंग जीडीपी या उसके बराबर जीडीपी आ चुका है। लेकिन अगर हम अदर लार्ज इकोनॉमीज़ की बात करें तो अलग अलग जो इकोनॉमीज़ है, जो इंडिया के काउंटर पार्ट इकोनॉमीज़ हैं, उनका ट्रेंड भी थोड़ा अलग है। एंड एनालिसिस एट टू ऑफ देम, कौन टू ऑफ देम? दैट इज यूएस एंड फ्रांस। अगर हम यूएस एंड फ्रांस का जीडीपी ग्रोथ का डेटा या जीडीपी पैटर्न देखें प्री कोविड से लेकर के पैंडेमिक और आज क्वार्टर इस करंट फिजिकल ईयर तक का, द लेटर इज स्टिल 0.4% बिलो वेयर इट यूज टू बी इन फाइनेंशियल ईयर 2019। यानी यूएस, अगर हम यूएस फ्रांस का डेटा देखें तो यूएस अभी भी अपने प्री कोविड लेवल यानी फाइनेंशियल ईयर 2019 के कंपैरिजन में अभी भी उसकी जीडीपी 0.5% लोअर है। यूएस हैज सीन 1.9% ग्रोथ। तो हम ये कह सकते हैं कि यूएस इकोनॉमी जो है वो अभी अपने प्री कोविड लेवल पर नहीं पहुंचा है। हालांकि द स्ट्रक्चर ऑफ ईच कंट्रीज जीडीपी इज डिफरेंट, सो it is not very fruitful, not very accurate or credible to compare the GDP numbers or GDP data of two different countries. But yes, अगर नंबर है तो कंपैरिजन तो होगा ही। तो यूएस का यूएस से ही कंपैरिजन किया जा रहा है, तो अपने ही डेटा के कंपैरिजन में यूएस अभी भी अपने प्री कोविड सिचुएशन में नहीं पहुंचा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि हर कंट्री का जीडीपी जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे इंडिया के केस में एग्रीकल्चर का एक सिग्निफिकेंट रोल है जीडीपी में, जैसा कि हमने डिस्कस किया। और हम ये भी देखा कि हमने एग्रीकल्चर, चाहे वो 2019 रहा हो, चाहे वो 2021 रहा हो, चाहे वो 2022 रहा हो, इन तीनों ही साल में एग्रीकल्चर एक पॉजिटिव
और एक स्टेबल ग्रोथ रेट पे रहा है, एक ऑप्टिमम ग्रोथ रेट पे रहा है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जल्दी रिकवरी करती हुई दिख रही है। जबकि अगर यूएस की बात करें तो एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर 2% इनटू द जीडीपी ऑफ फ्रांस एंड 1% इन द जीडीपी ऑफ यूएसए। तो यूएसए में केवल एग्रीकल्चर का 1% शेयर है इनटू जीडीपी, फ्रांस की जीडीपी की कैलकुलेशन में 2%, जबकि इंडिया के केस में आपको पता होगा जीडीपी, एग्रीकल्चर का जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन अप्रॉक्सीमेटली 10% है। तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं, और एग्रीकल्चर पॉजिटिव ग्रोथ रेट में रहा है थ्रू आउट द पैंडेमिक, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसकी जो जीडीपी है वो जल्दी रिकवर होती हुई दिख रही है। द पेस ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड इन एग्रीकल्चर, forestry, fishing exceeded expectation according to a note from chief economist of rating agency, that is ICRA। तो ये कहा जा रहा है कि अलग अलग इकोनॉमीज में जीडीपी का पैटर्न अलग अलग दिख रहा है। कुछ इकोनॉमी जो अपने प्री कोविड लेवल पर पहुंच गई हैं, कुछ इकोनॉमी अभी भी प्री कोविड लेवल की ग्रोथ रेट से नीचे हैं, लेकिन फिर भी कंपैरिजन जो है वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि अभी पूरे वर्ल्ड को, पूरे जो अगर हम बोलें वर्ल्ड जीडीपी को एक लेवल पे आने पे अभी थोड़ा और टाइम लगेगा इस पैंडेमिक से के इम्पैक्ट से उभर कर वापस आने का। द resilience of the recovery may be under question given the private final consumption expenditure is still trailing the pre-COVID level as per the economist। और कितने टाइम पीरियड तक आएंगी इकोनॉमीज एक लेवल पे या प्री कोविड लेवल पे अपने, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जिस तरह से नए नए वेरिएंट आ रहे हैं और अनसर्टेनिटी बढ़ रही है कोविड से रिलेटेड जो केसेस हैं उनको लेकर के। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है उसका भी कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है, प्री कोविड लेवल तक अभी भी प्राइवेट कंजप्शन, फाइनल कंजप्शन नहीं आया, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज के कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर के हम बात करें, चाहे वो हम हाउस होल्ड के एक्सपेंडिचर को लेकर के बात करें। तो ये कह पाना कि कब फुलेस्ट इकोनॉमिक रिकवरी स्टार्ट होगी, कब सारे की इंडिकेटर्स अपने प्री पैंडेमिक लेवल पर आएंगे और फिर से रिकवरी किसी भी इकोनॉमी में स्टार्ट होगी, मोर स्पेसिफिकली इंडिया में, दैट इज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। और अगर हम और डेटा देखें तो चेंज इन रियल जीडीपी फ्रॉम सितंबर 2019 इन केस ऑफ यूएस, इंडिया एंड फ्रांस। So this is the comparative data in case of real GDP. My student, there is two terms, real GDP and nominal GDP. So now in comment box, you will be telling me, you will write the answer of this question. What is the difference between real GDP and nominal GDP? But यहाँ पर जो data है, that is the comparison of the real GDP between or among these three countries, US, India and France. तो प्री पैंडेमिक के कंपैरिजन में यूएस जो है वो 1% का ग्रोथ रेट अचीव कर चुका है, यानी 2020 में फाइनेंशियल ईयर 20 में जो ग्रोथ रेट था यूएस का वो उससे अब 1.9% आ चुका है। फ्रांस जो है वो अभी भी निगेटिव टेरिटरी में, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, 0.4% नीचे है प्री कोविड लेवल से अपने। इंडिया अचीव इट्स पॉजिटिव ग्रोथ रेट बाई 0.3%। तो फ्रांस अभी भी माइनस टेरिटरी में है, हम कह सकते हैं प्री कोविड के कंपैरिजन में अभी भी फ्रांस अपने प्री कोविड लेवल पे नहीं आया है। यूएस और इंडिया के केस में हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही कंट्रीज ने अपना अपना प्री कोविड लेवल अचीव कर लिया है। एंड दिस इज द सेक्टोरल परफॉर्मेंस। मोस्ट सिग्निफिकेंट वन इज एग्रीकल्चर। दिस इज द परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन केस ऑफ इंडिया, फ्रांस एंड यूएसए। सो दिस डार्क बार indicates the agriculture, gray bar indicates the industry, light gray bar indicates the manufacturing and white bar indicates the service sector। और हम क्लियरली देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट में सर्विस सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है, या हम ये कह सकते हैं परसेंटेज इन जीडीपी एज पर द फाइनेंशियल ईयर 2019, सर्विस सेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है यूएसए में। इंडिया में भी सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है, बट इतना डिस्पैरिटी नहीं है। 16% एग्रीकल्चर का शेयर था 2019 की जीडीपी के अकॉर्डिंग, 25
हम ये कह सकते हैं 25% मैन्युफैक्चरिंग का और 25% इंडस्ट्री का, 14% मैन्युफैक्चरिंग का एंड 49.4% सर्विस वैल्यू एडिशन था एज पर 2019 जीडीपी नंबर। और ये है फ्रांस का 2% एग्रीकल्चर, 17% इंडस्ट्री, 10% मैन्युफैक्चरिंग एंड 70% सर्विस सेक्टर। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर का जो शेयर था वो सबसे ज़्यादा था और एग्रीकल्चर थ्रू आउट पॉजिटिव रहा है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि फ्रांस के कंपैरिजन में इंडिया ने जल्दी ग्रोथ रेट प्री पैंडेमिक लेवल अचीव किया। अब देख लेते हैं article number 3 that is given on page number 6. Unemployment rate at 9.4% in Jan and March. So the unemployment rate in urban area of the country for the people of all age fell to 9.4% in January and March 21। तो आज के जितने भी बिजनेस स्टैंडर्ड में जितने भी कॉलम है, मोस्ट ऑफ द कॉलम्स आर रिलेटेड टू द इकोनॉमी और इकोनॉमिक डेटा, क्योंकि एनएसओ ने रिसेंटली डेटा पब्लिश किया है, तो मैक्सिमम जो न्यूज़ है दैट इज़ ऑल अबाउट द इकोनॉमी। तो इस न्यूज़ में अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन एरियाज, कोविड-19 की वजह से रिवर्स माइग्रेशन हुआ था, कई सारी कंपनी से रिट्रेंचमेंट भी किए थे, टर्मिनेशंस भी किए थे, जिसकी वजह से 40 साल में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंट्री इंडिया ने देखा था पैंडमिक के ड्यूरेशन में। हालांकि अब वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो भी कम हो रहा है। As per the recent survey, unemployment rate in urban area of the country for the people of all ages, irrespective of the ages, fell to 9.4% in the month of January and March. And it was lowest since the nationwide lockdown was imposed in March last year, but yes, was higher than the pre-pandemic level of 9.1%। तो pre-pandemic period में जो unemployment level था वो 9.1% का था, और इस समय यानी फाइनेंशियल ईयर 22 की अगर हम बात करें तो ये 9.4% तक आ गया है। इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के केस में भी वी आर अबाउट टू अचीव द प्री पैंडेमिक लेवल, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्री पैंडेमिक लेवल कंपैरिजन में ज़्यादा है नंबर, एज पर द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे बाय एनएसओ। तो एनएसओ सर्वे करता है किसका, पीरियोडिक लेबर फोर्स, उसके अकॉर्डिंग हम अभी अनएम्प्लॉयमेंट के केस में थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट कम तो हुआ है पैंडेमिक के ड्यूरेशन में, बट यस प्री पैंडेमिक के लेवल पर हम अभी भी नहीं आए हैं। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन जनवरी एंड मार्च 2020 was 9.1% in urban areas for all the people of all the age as per the survey। अब यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट को समझने के लिए ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि अनएम्प्लॉयमेंट की क्या डेफिनेशन लेता है एनएसओ। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हमेशा से रहता है। तो अगर एनएसओ अनएम्प्लॉयमेंट पर डेटा कलेक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली एनएसओ ने अनएम्प्लॉयमेंट को क्लियरली डिफाइन कर रखा हो कि वी विल कॉल दिस पर्टिकुलर सिचुएशन और दिस पर्टिकुलर condition as unemployment। So what is the unemployment or joblessness? As per the NSO, joblessness or unemployment rate is defined as the percentage of unemployed person in the labor force, which is the sum of people who are working or those who are लुकिंग फॉर द वर्क। दिस पर्टिकुलर पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट उसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बेसिस पर कंपेयर किया जाता है, उन्हीं नंबर्स के बेसिस पर कंपेयर किया जाता है जो इंडिविजुअल या तो जॉब कर रहे हैं या दे आर लुकिंग फॉर जॉब, दे आर विलिंग टू डू जॉब। I may be capable of doing any job, I may be capable of doing any employment, but I am not willing to do. So I am not the part of their periodic labor force because I have the capacity, I have the skill, I have studied so well, but I'm not looking for a job. So I'm not the part of labor force। तो लेबर फोर्स का पार्ट केवल वही इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जो जॉब करने के लायक हों या जॉब कर रहे हों और जॉब ढूंढ भी रहे हों, जॉब करने के इच्छुक भी हों। तो उन्हीं से अनएम्प्लॉयमेंट उनको इंक्लूड करके लेबर फोर्स में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट किया जाता है। द रेट फॉर द करंट वीकली स्टेटस CWS इन अर्बन एरिया फॉर ऑल द पर्सन ऑफ ऑल एजेस वॉज अप्रॉक्सीमेटली 10.3% इन द मंथ ऑफ October to December 2020 as per the survey।
और फीमेल के एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2020 के कंपैरिजन में फीमेल का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी डिक्रीज हुआ है। अक्टूबर दिसंबर पीरियड में फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो अप्रॉक्सीमेटली 13.1% था इन फाइनेंशियल ईयर 2020, जो कि फाइनेंशियल ईयर 21 में आते आते 11.4% तक हो चुका था। और यही पैटर्न हमें मेल के केस में भी देखने को मिला है। इन केस ऑफ मेल इट वाज 9.5% in financial year 2020 and in financial year 21, or we can say October January March quarter, it was 8.7%. So recently NSO had launched the PLFS data in April 2017, तो अप्रैल 2017 से ये डेटा पब्लिश हो रहा है रिलेटेड टू द वर्कफोर्स। तो पैंडेमिक का इम्पैक्ट तो सीधा सीधा दिख रहा है कि पैंडेमिक की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा था, बट यस अब चूंकि इकोनॉमी रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है वो भी रिलैक्स हो रहा है, वो भी रिड्यूस हो रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट अ क्वार्टरली बुलेटिन brought out and it gives the estimates of labor force indicator। तो जो ये PLFS का डेटा अप्रैल 2017 में लॉन्च किया था NSO ने, उसके अकॉर्डिंग क्वार्टरली बुलेटिन पब्लिश होता है और इसी क्वार्टरली बुलेटिन में बेसिकली जो लेबर फोर्स के की इंडिकेटर्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर बाय ब्रॉड स्टेटस इन एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज इन इंडस्ट्री, इस तरह के सारे की इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कशन किया जाता है या इसका डेटा पब्लिश होता है। तो आप याद रखेंगे कि ये PAFLS का डेटा कौन पब्लिश करता है, क्या इंडिकेटर्स होते हैं, कब ये लॉन्च हुआ था, ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। दिस कॉन्स्टिट्यूट अ प्रोबेबल क्वेश्चन इन योर अपकमिंग एग्जाम। सो द एस्टिमेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन इन CWS गिव्स एन एवरेज पिक्चर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन 7 days during the survey period. So this is the graph of unemployment rate in all ages, male, female and all person in India from financial year 2020 to financial year 21, just to give the comparison of pandemic and pre-pandemic time। और ये हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं इट इज़ बीइंग डिक्रीज्ड। हालांकि यहाँ पर एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आप देखना चाहें तो अगर इस क्वार्टर को देखें तो इस क्वार्टर में कोई पैंडमिक नहीं था, बट येस अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज एज इट्स हाईएस्ट, और ऐसा कहा जा रहा था कि 40 साल में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा था ये, एंड दैट वाज रिलेटेड टू द पॉलिसी रिलेटेड इनसफिशियंसीज। तो उस समय 40 साल का सबसे ज़्यादा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा था। हालांकि दिस वॉज नॉट बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक, लेकिन उसके बाद पैंडेमिक में भी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा था। और अप्रैल एंड जून के क्वार्टर में इंडिया वॉज ऑन द फुल फ्लैज लॉक कोविड रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन और फुल फ्लैज नेशन वाइज लॉकडाउन। तो उसका भी इम्पैक्ट, या हम कह सकते हैं पैंडेमिक का भी इम्पैक्ट देखने को मिला था। हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा हमेशा से कंट्रोवर्सी रही है। पैंडेमिक से पहले भी ऐसा कहा जा रहा था कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है बिकॉज ऑफ द पॉलिसी रिलेटेड इनसफिशियंसीज, और पैंडेमिक ने उस सिचुएशन को वर्स कर दिया था। बट येस अब क्योंकि इकोनॉमिक रिकवरी के साथ unemployment भी recover कर रहा है। This is the proper definition of unemployment. You can go through it. Now let us look into the some other news clips. Firms gear up for Omicron version of COVID vaccine. So finally all the laboratories, all the firms have started for modifying their vaccines, or all vaccine makers in India are the view of that the scaling up the existing vaccine to make up them more effective is possible in case of Omicron. So now they started modifying it, जिससे कि जो ओमिक्रॉन वर्जन है उस पर उस वैक्सीन का इम्पैक्ट हो। हालांकि बूस्टर डोज को और एडिशनल डोज को लेकर भी डिस्कशन हो रहा है कि क्या कोई एडिशनल डोज या बूस्टर डोज दी जाए जो कि इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अगेंस्ट इफेक्टिव हो। तो क्या होगा, अभी आगे क्या पॉलिसी फ्रेमवर्क आएगा वो एक अलग इशू है। बट यस जो वैक्सीन मेकर्स हैं दे ऑल हैव स्टार्टेड R&D फॉर मेकिंग द वैक्सीन इफेक्टिव अगेंस्ट न्यू वेरिएंट। नाउ लेट अस लुक इनटू द नेक्स्ट क्लिप। डबल डिजिट ग्रोथ लाइकली टू दिस फिस्कल ईयर CES। जैसा कि हमने डिस्कस किया
कि जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं मिस्टर के.वी. सुब्रमण्यम, उनके अकॉर्डिंग इंडिया वुड अचीव डबल डिजिट ग्रोथ इन द करंट फिस्कल ईयर ऑन द बैक ऑफ पॉलिसी इनिशिएटिव एंड कंटिन्यूइंग रिफॉर्म्स। तो उनका ये मानना है, जो अभी डेटा रिसेंटली एनएसओ ने पब्लिश किया अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के, इंडिया की इकोनॉमी को लेकर के, उसको देखते हुए हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का कहना है कि इंडिया इज़ ऑल सेट टू अचीव द डबल डिजिट ग्रोथ रेट। और इसके अलावा जो अदर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं, उनका जो डेटा है वो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि एस.एन.पी. ने अभी तक इंडिया की जो ग्रोथ फोकस 9.5% की है वो रिटेन करके रखी है। हालांकि बहुत सारे जो इकोनॉमीज़ हैं उन्होंने रिविजन भी किया है, और मोस्ट ऑफ द रिवीजन में बहुत जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उन्होंने रिवीजन भी किया, और जो रिवीजन के केसेस में उन्होंने इकोनॉमी का जो प्रोजेक्शन है, फोरकास्ट है, वो स्लैश किया है, कम किया है पिछले फोरकास्ट के कंपैरिजन में, रिलेटेड टू द फेयर ऑफ इंक्रीजिंग कोविड-19 केसेस। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। 8 core sectors production up 7.5% in October. So the 8 industry core sector grew 7.5% in the month of October against a 7-month low of 4.5% in September. So finally जो इंडिया के 8 core sectors हैं उन्होंने भी अब ग्रोथ स्टार्ट कर दी है, या हम कह सकते हैं उन्होंने भी रिकवरी स्टार्ट कर दी है। सितंबर में 4.5% का प्रोडक्शन या इंक्रीज देखने को मिला था, जो कि अक्टूबर आते आते 7.5% तक का रह गया है इन रिस्पॉन्स टू द डिमांड ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये इंक्रीज हो भी रहा है कोर सेक्टर में, ये टेम्परेरी हो सकता है। क्यों टेम्परेरी? इट मे बी बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल सीजन। फेस्टिवल सीजन में डिमांड बढ़ती है इंडिया में, उस डिमांड की वजह से ये कोर सेक्टर्स में ये ग्रोथ देखने को मिली। बट हाँ, ये कितना कंटिन्यू रहेगी ये ग्रोथ, दैट इज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। बट यस, हाँ, इस बात में थोड़ा सा पॉजिटिव साइन दिख रहा है कि एटलीस्ट आफ्टर 7-month लो ऑफ 4.5% इन द मंथ ऑफ September, नाउ इंडियाज 8 core industry or 8 core industry sector has started growing and has achieved 7.5% growth in the month of October. कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखकर बताइए व्हाट आर दोज 8 कोर सेक्टर, कौन है 8 कोर सेक्टर, कौन कौन सी इंडस्ट्री और कौन कौन से सेक्टर आते हैं 8 कोर सेक्टर में। और यहाँ आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि 8 कोर सेक्टर को कोर क्यों कहते हैं, बिकॉज दे कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट अप्रॉक्सीमेटली 42 to 40% weightage into the industrial production of इंडिया। आईआईपी में इनका जो वेटेज है वो 42% अप्रॉक्सीमेटली है, एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज 8 कोर सेक्टर। ये किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट ओवरऑल इंडस्ट्रियल आउटपुट पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, एंड डेफिनेटली दे आर द की इंडिकेटर फॉर इंडियाज रिकवरी और इंडियाज इकोनॉमिक सिचुएशन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। फिस्कल डेफिसिट एट 36% ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022. Union government fiscal deficit for April-October period came in at rupees 5.47 trillion, or that is 36.3% of budgeted estimates. और अगर इसको पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल के कंपैरिजन में इन corresponding period last year the country's fiscal deficit was as high as 119.7% in the very same period. और if we compare this data with the pre-pandemic time, यानी 20 फाइनेंशियल ईयर 20 से कंपेयर करें, सो इन प्री पैंडेमिक टाइम पीरियड April-October 2020 data shows that fiscal deficit was approximately 102% of the budgeted estimate. So हम ये कह सकते हैं इस बार इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा फिजिकल प्रूडेंस कहीं ना कहीं रजिस्टर किया है, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो डिक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से फिजिकल डेफिसिट जो है की कंडीशंस जो है वो इम्प्रूव हो रही है, फिजिकल डेफिसिट कम हो रहा है। जबकि कई सारे इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि इट इज़ अ टाइम दैट गवर्नमेंट शुड स्टार्ट इंक्रीजिंग इट्स एक्सपेंडिचर, क्योंकि यही आगे जो प्राइवेट सेक्टर है उनको इंडिकेशन देगा कि गवर्नमेंट का जो कॉन्फिडेंस है इंडियन इकोनॉमी में वो बहुत ज़्यादा है, और
जिससे उनका भी एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। और इस समय इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए, इकोनॉमिक रिकवरी को सस्टेन करने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एज वेल एज प्राइवेट एक्सपेंडिचर दोनों ही इंक्रीज होना ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी, जिससे डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइवेट सेक्टर ऑटोमेटिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जाएगा या कंजप्शन एक्सपेंडिचर पर जाएगा। लेकिन एज पर द डेटा, अभी तक जो बजटेड एस्टिमेट था फिस्कल डेफिसिट का, उसका 36.3% अचीव किया है केवल गवर्नमेंट ने, जो कि पिछले साल 3 डिजिट्स में थे ये नंबर, और प्री पैंडेमिक में भी इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 100% till October. So this is the graph that you can see in order to have the understanding of fiscal deficit in terms of percentage of budgeted estimates from April, May, April, June, April, July, April, October, April, September, and April, October quarters. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share, and subscribe. Thank you.